Good afternoon. Welcome to Dr. Speak. I'm Amrit Pal Singh. With me is my colleague Rama Tyagi. Over the next half hour, we bring you the news related to COVID-19. This is a call-in program, phone-in program. You can call our numbers, which we'll be putting out on our screens. You can also go to our Facebook page, and which is DD News Live, and you can post your questions there, and we will try and have a panel of experts, doctors, who will answer your queries. We bring you this program every day in the afternoon, but from now on we'll be bringing you the show at 3:30 every afternoon. These are the numbers flashing on your screen. Rama, would you want to introduce the number, please? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। और जिस तरह से मेरे सहयोगी अमृत ने आपको बताया कि इस शो में हम आपको कोविड-19 से संबंधित सभी जो आपके भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, प्रश्न हैं, उनका जवाब देते हैं। और डॉक्टर्स का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ता है। आप अपने सवाल जो है हमें भेज सकते हैं और आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं, 011233873031। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक लाइव पर हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब आप पा सकते हैं। जिस भी तरह का संशय है, जिस भी तरह का भ्रम है, नंबर हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 01123388093। तो ये नंबर आप देख सकते हैं, 23387031। ये नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार आ रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक लाइव से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो तमाम आपके सवालों का जवाब देंगे। तमाम आपके मन में जो भी प्रश्न है आप इनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ता है, उनसे विशेष जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो वो भी इसका समाधान करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में कोरोना की स्थिति क्या है। बेहतर स्थिति में भारत इस वक्त है। लगातार जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, भारत में कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कोविड-19 के 16 अगस्त तक 3,41,400 टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अगस्त को 7,31,697 कोविड-19 के टेस्ट हुए। तो टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है, लगातार कोविड पर नियंत्रण के कदम तेज होते जा रहे हैं। अमृत। That's right, Rama, and India is gaining momentum in the war against coronavirus as it continues to fight the virus vigorously. Efficient and effective testing is the answer. The total number of tests for detection of COVID-19 has crossed the 3 crore mark in India, according to the Indian Council of Medical Research. Data 3,41,400 samples have been tested so far. 7,31,697 tests were done in the last 24 hours alone. And if we talk about recovery rate, India's recovery rate is one of the best recovery rates in the world. It's much higher than other countries. The fatality rate has reduced further. In its COVID-19 case fatality rate, India has one of the lowest mortality rates globally, which stands at 1.92%. India's recovery rate has crossed 72.5%, and ensuring that more patients are recovering. 57,584 patients have recovered and have been discharged in the past 24 hours alone. With this, the total recovered COVID-19 patients has increased to more than 19.19 lakh. The current active cases now stand at 6,76,900 in the country. So you can see the fatality rate is 1.92%, the recovery rate is 72.51%, and more than 19 lakh people, 19.19 lakh people have been recovered and discharged so far. The active cases in the country currently stand at 6,76,900. So the good news is that there is aggressive testing going on. It's crossed the 3 crore mark. The case fatality rate is pretty low, 1.92%. The recovery rate is very good in the country, which is above 72%. But that does not mean, though this is good news, but that does not mean you don't need to be careful. You need to be very, very careful till the vaccine comes in, till there is a cure. The only way we can decisively defeat this battle
is by following the protocols, the social distancing norms, the hand hygiene put out by the Ministry of Health and Family Welfare. बिल्कुल, लगातार जो भी है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी से और दिशा निर्देशों के साथ इससे मुकाबला करने की ज़रूरत है, और किस तरह से आप इस जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं यही लगातार हम बताते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तवा, HOD डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पद्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और ICMR के जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके मुताबिक टेस्टिंग जो है अब वृहद स्तर पर हो रही है, टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, और लगातार जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और जो मृत्यु दर है वो लगातार कम आती जा रही है, और विश्व में जो सबसे कम मृत्यु देशों के देश हैं उसके अंदर हम शामिल हो गए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा कदम इसमें कहा जा सकता है। जिस तरह से टेस्टिंग की संख्या डॉक्टर पद्मा लगातार बढ़ रही है, हम ये जानना चाहेंगे कि इस कदम से कितना आगे जाया जा सकता है, किस तरह से इससे जो है इस पर नियंत्रण और ज्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि टेस्टिंग की जो रैंप अप जो हो गया है वो ट्रेमेंडस है। और पहले ये था कि हमारे पास वो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी थी, एक ही था RT-PCR, आपको पता है ये। तो वो रिजल्ट आती थी 16 घंटे, समटाइम्स 24 घंटे के बाद। उसके बाद आ गया CBNAT, TrueNAT तो ट्रूली नेशनल है, CBNAT थोड़ा इंपोर्टेड है। उसके जरिए तो 2 घंटे में आ जाती है रिजल्ट। उसके बाद एंटीजन आ गया, वो 15 मिनट में आ जाती है, ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ केयर सिस्टम में आ गया। और टेस्टिंग एंटीबॉडी का भी आ गया, जो हमारे इन्फेक्शन के बाद जो रिकवरी, कितने एंटीबॉडीज आ गया, स्पेशली फॉर प्लाज्मा डोनेशन, इसके लिए उपयोगित है। तो इसमें जो पूल टेस्टिंग एक बार होता था, क्योंकि हमारे पास इतने सारे टेस्ट नहीं होते थे, पर अब जो है इतना रैंप अप हो गया कि कम्युनिटी लेवल में सीरो सर्वेलेंस हो रहा है, और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जो भी इमरजेंसी में आ रहे, हेल्थ केयर वर्कर्स में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो एक्सपोज, इस तरह इन लोगों को टेस्ट करने से क्या हो रहा है, जो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जिसको कोई बुखार नहीं है, कोई सोर थ्रोट नहीं, उनको कोई पॉजिटिव है तो उनको पिकअप कर रहे हैं, उनको आइसोलेट कर सकते हैं, क्वारंटीन भी कर सकते हैं, ताकि वो दूसरे लोगों से मिक्सअप नहीं होते। और जो माइल्ड है उनको मॉनिटरिंग होती है, जैसे ही कुछ कंप्लेंट्स बढ़े तुरंत उनको लेके उनकी इलाज हो सकता है, ताकि वो सिवियरिटी ना बढ़े। तो इस तरह जो रैंप अप करने से हमारे अंदर जो 2 चीजें हो गया, तो जो एसिम्प्टोमेटिक वाले ताकि और इन्फेक्शन ना स्प्रेड करे, दूसरा जो माइल्ड वाले तुरंत उनको लेके जब भी कंप्लेंट्स ज्यादा हो गया तो उनके सही वक्त में इलाज करके उनको बचा सकता है। तो इस तरह रैंपिंग अप हैज ट्रेमेंडसली हेल्प्ड इन बोथ कंटेनिंग एंड रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी, जो बार बार हम कह रहे रिकवरी बढ़ा रहे और मोर्टेलिटी रेट को कम कर रहे। ऑलराइट, सो टेस्ट, track and treat, that's the mantra that India is dealing with to fight with the coronavirus. But Dr. Padma, testing is being ramped up. Who can get tested? People with symptoms or people without symptoms, can they get tested? If I suspect that I've come in contact with somebody who could be positive, Arogya Setu app says that you might have come in contact with someone or you have come in contact. Am I eligible for getting tested? Who can get tested? Absolutely right, you can be tested. See, the one is that the entire what is called as a flu screen, which was very limited in its number of features, which said flu screen has expanded tremendously now. So it's no longer just fever, sore throat, chills, fatigue, myalgias and what have you, even diarrhea, loss of smell, loss of taste, all of them to come in. The next important thing, as you said, is if I have come in contact, whether it's a healthcare worker or even in a family who have been exposed, and there is a level of risk assessment, and now that's what we are doing in AIIMS, even in our hospital, where we are chronically, we're constantly exposed to this kind of an ambience of, being exposed to COVID. So there's a risk assessment, whether it is a low risk, it's a medium risk or a high risk, and when they should be tested. So for example, if I have got exposed to somebody who's COVID positive, now that COVID positive individual may have developed symptoms, say 2 days, just
maybe just today, then you start off whether the contact has been 2 days earlier or 2 days later, and when do you need to get tested, same day or 4 or 5 days later, where the pickup is best. So the question that you have asked, everybody, even if they don't have symptoms and have come into contact, there is a suspicion, can get tested, but then that is after a risk assessment. So just don't get into one glove fit all approach, not all across, because please remember, testing is also not, it's not sine qua non. You can miss, or if you're not testing at the right time, you can miss also. So when you're doing this contact tracing and risk assessment, it is a particular day where the testing will give you the maximum result. So that becomes important. बिल्कुल बेहद अहम बात आपने बताई है। हमारे पैनल में दूसरे डॉक्टर वेद प्रकाश भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपसे ये जानना चाहेंगे, टेस्टिंग के ऊपर बात चल रही थी और कई तरह की टेस्टिंग जो है अब उपलब्ध हैं, हालांकि बड़े स्तर पर टेस्टिंग हो रही है, उसको लेकर भी एक जो है प्रश्न लगातार आता है कि कौन सी टेस्टिंग कराई जाए। और कई बार जो एंटीजन टेस्ट आए हैं उसमें लोगों को बड़ा संशय रहता है कि एंटीजन में अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं या फिर तरह का रिजल्ट आए, क्या उन्हें दोबारा टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? तो इस पर स्पष्ट करें कि किस तरह से जो इस तरह के प्रश्न है उनका समाधान किया जा सकता है। देखिए, जो एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन टेस्टिंग हम लोग करते हैं जो स्क्रीनिंग के लिए जी, जो हमारे मास स्क्रीनिंग है उनमें हम लोग कर सकते हैं, और इसमें फॉल्स नेगेटिविटी का स्तर ज्यादा है। इनका डेजिग्नेशन वगैरह नहीं बोला, तो ऐसे में इसको पॉजिटिव जो आ रहा है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो पेशेंट नेगेटिव आ रहा है दैट इज नॉट डेफिनेटली नेगेटिव। तो ये जो हमारा ड्रॉबैक है इसका, जो एंटीजन टेस्टिंग के लिए आपने किट वाला आपने बताया। दूसरा, जो हमारी क्विकली अगर टेस्टिंग करनी है तो ट्रूनेट उसके लिए है। ट्रूनेट इज एज गुड एज RT-PCR टेस्टिंग। वो क्विकली हमें रिजल्ट दे सकता है, 1 घंटे में, 2 घंटे में। कोई इमरजेंसी है, उन पेशेंट्स को हम लोग इसमें टेकअप कर सकते हैं। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसको मैं कहूँगा RT-PCR टेस्टिंग। RT-PCR टेस्टिंग में थोड़ा समय लगता है, 12 घंटे या और थोड़ा सा 6 से 12 घंटे या 24 घंटे तक भी लगते हैं। कभी जब ज्यादा भीड़ आती है, पेशेंट्स की ज्यादा सैंपल्स होते हैं, उनको प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है। तो ये टेस्टिंग के लिए मॉडलिटीज हैं। इसके अलावा जो एक टेस्टिंग जो आपने एंटीबॉडी के लिए कहा, ये सीरो सर्वे हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जो पेशेंट कोई एक्सपोज हुआ है, या बहुत सारे अभी देखने को मिल रहे हैं कि जिनमें एक्सपोजर कब हुआ नहीं पता है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, ठीक हो गए हैं, तो ऐसे में हम लोग उनको एंटीबॉडीज देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज अगर डेवलप हो गई हैं, इट मींस उनको एक्सपोजर हुआ और ठीक हो गए। तो ऐसे में ब्लड सैंपल्स से हम लोग एंटीबॉडीज का टेस्टिंग कर सकते हैं। But Dr. Ved Prakash, first let me once again introduce Dr. Ved Prakash. He's the head of Department of Pulmonary Medicine and Critical Care at the King George Medical University, Lucknow. Dr. Ved Prakash, is this antigen test decisive? Say if I get my antigen test and I come negative in that, can I be very sure that I do not have, I'm not COVID positive? It is difficult because the false negativity of these antigen testing kits is high. Okay. So that's why when it is coming positive, then it is good. If it has not detected the virus, it comes negative, then it is we can't say surely that you are negative. But the RT-PCR is the golden mean. I mean, if I get the RT-PCR done, RT-PCR is gold standard. Yes.
All right. Okay. RT-PCR is the बिल्कुल। gold standard. और जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल भी आने शुरू हो गए हैं। फेसबुक लाइव से एक दर्शक जुड़े हैं, राजन माथुर। डॉक्टर पद्मा, आपसे पूछना चाहेंगे, ये कहते हैं कि इनकी बेटी सर्विस करती हैं और वो जब अपने ऑफिस से आई उसके बाद 99.8 उनको फीवर था और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन ले ली जिससे उनका फीवर 99 पर आ गया। उसके बाद जब दोबारा से इन्होंने फीवर चेक किया तो फिर नेक्स्ट डे 99 था। उसके बाद ये कहते हैं कि उनको गले में हल्की सी खराश और दर्द की शिकायत है और जो फीवर की स्थिति है वो वही है। तो क्या इनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए? हाँ, मैं समझती हूँ वो यंग होगी जी, डॉक्टर की उम्र, ऑफिस से वापस आए। हाँ, तो ये जो है कि हर बुखार, हर सोर थ्रोट तो कोविड है नहीं। फिलहाल ये कहते कि जब भी एक पैंडेमिक सिचुएशन होती है उसमें हर फ्लू लाइक फीचर को टेस्ट करना चाहिए। तो ये नहीं सोचना कि ये कोविड ही निकलेगा, परंतु सिंस हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, हर फ्लू लाइक फीचर मतलब बुखार, मायालजिया या सोर थ्रोट या थोड़ा सा खराश और खांसी है, टेस्ट करना जरूरी होता है। इवन इफ शी इज यंग, शी शुड गेट टेस्टेड। बिल्कुल, टेस्ट करना जरूरी है और because it's a pandemic, we should do it. Yes. बिल्कुल। इस बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आइसोलेशन कितने दिन का होना चाहिए और टेस्टिंग के बाद अगर उन्होंने आइसोलेशन कर लिया है तो ये पीरियड कितना होना चाहिए या उसके बाद उन्हें दोबारा टेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके बारे में गाइडलाइंस भी हैं, तो उन गाइडलाइंस को जो है वो पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ओनली थिंग इज, पहले तो गाइडलाइंस तो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, 14 दिन करनी है, यानी 2 बार टेस्ट करना है। वो भी चेंज हो गया क्योंकि वी आर लर्निंग इन दिस प्रोसेस। तो पिछले 4-6 महीने में हम लोग का नॉलेज भी बढ़ा है। वी सीम टू रियलाइज हाउ दिस वायरस इज बिहेविंग। तो देयरफॉर जो होम क्वारंटाइन, जैसे भर्ती भी था तो उसके बाद होम क्वारंटाइन इज जस्ट अबाउट अ वीक, और इवन इन हॉस्पिटल एक ही बार टेस्ट होते हैं, ये नहीं कि 2 बार टेस्ट करके डिस्चार्ज करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ा सा लीवे अभी मिल गया है, बिकॉज वी आर रियलाइजिंग कि अगर अर्ली पिकअप हो गया तो इसमें हालांकि ज्यादातर ज्यादा आउटकम अच्छा ही होता है। बिल्कुल। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक जो आम प्रैक्टिस में अब आ गया है कि ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन लेवल आपका घर में अगर होम आइसोलेशन में है उसको चेक कर सकते हैं या किसी तरह का संशय है उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये सवाल आता है कि कौन सी फिंगर इसके लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए या किस में एग्जैक्ट उनको जो है जानकारी मिलेगी? देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर्स वैसे तो किसी भी फिंगर्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो इंडेक्स फिंगर है दैट विल बी द मोर एप्रोप्रिएट। तो इंडेक्स फिंगर यदि इस्तेमाल करते हैं, वैसे मिडिल फिंगर भी कर सकते हैं, बट इंडेक्स फिंगर को हम लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इनको हम लोग ले सकते हैं। Alright, okay. Let me go across to Dr. Padma. Dr. Padma, there is a viewer who's asked a question on our social media. He says, what is cytokine storm? Will my own immune system damage my organs in the process of fighting COVID? Yeah, it's a very intelligent question. So cytokines is the term which we've been hearing a lot. Now cytokines is essentially immunity, they're markers, they're inflammatory markers. Say for example, hello? So if you've heard of these inflammatory markers like, interleukins, IL-6, CRP, these are not, when there is something which is inflamed in the body, then the body sort of responds. It's our host defense mechanism. It's our own army. So cytokine storm is something where this response is overwhelming. So it is not only killing the virus, it will kill our good cells, our own cells, so our own organs. So he's correct when he says that this overwhelming defense system is harming our own cells. That is called a cytokine storm, which affects different organs in the body. Yes. All right. बिल्कुल। और
बिल्कुल, हमारे दर्शक भी हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं। नागौर राजस्थान से मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, करिए अपना सवाल। हाँ सर। जी मुकेश, पूछिए। हाँ, ये पूछना था सर अपने मैडम ये कि जैसे कोई पॉजिटिव आ जाए तो। जी पूछे, पॉजिटिव आ जाए तो? एक तो क्वेश्चन ये है मैडम अपने, तो मेरे जैसे नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, फिर भी गले के अंदर खराश है, मतलब खांसी का ज्यादा हल्का था। और एक जैसे जो सामान होता है कोई पॉजिटिव आ जाए तो घर के अंदर खाने का सामान कितने दिन, सूखा सामान कितने दिन तक रहता है? सूखा सामान कितने दिन तक रहता है? आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव कोई आ जाते हैं, पानी वगैरह, जैसे पानी वगैरह मैंने अभी नहीं हाथ लगाया कुछ भी। जी डॉक्टर पद्मा, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? तो इज ही टॉकिंग अबाउट कंटामिनेशन? Ma'am, I think what he means to ask is, Dr. Padma, what he means to ask is that if somebody is positive and he's touched, I mean, if he comes positive today, for example, and before that he's touched items in the home, so how long does the contamination stay? और घर में जो सामान मौजूद है, क्या उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है क्या, या उसे किस तरह से, क्या उसे भी आइसोलेट करना चाहिए? And for the benefit of this viewer and caller, if you could please answer that in Hindi. Thank you. yes. तो ये जो है कि ये आपका जो ट्रांसमिशन है, मैं पहले से हम लोग कहते थे कि ये फोमाइट ट्रांसमिशन, मतलब अगर आप किसी चीज को छुए हैं तो वो जो छुए हैं, जैसे मेटल है, जैसे आपके दरवाजे की जो नॉब होता है उसको छुए हैं, तो उसमें जो कितने घंटे रह सकते हैं, तो काफी घंटे वो रह सकता है, तो उसको तो क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप कोई कार्डबोर्ड की चीजें छुए हैं तो उसके ऊपर भी कुछ घंटे रह सकते हैं, उसको भी बाहर रखनी पड़ेगी। सब्जियां है, ऐसी चीजें, तो उसको तो वॉश ही करना पड़ेगा। अपना जो यूटेंसिल्स है, जैसे आपका प्लेट है, आपका ग्लास है, आपका जो है, आप अपने कमरे में रहना है, वो आपकी जो इस्तेमाल किए हुए आप अपने धो लीजिएगा और बाहर रख लीजिएगा। तो जो एक बंदी और somebody आपको खाना दे रहे, आप उठा रहे, आप तो अपने रूम में कन्फाइन रखनी। इससे पहले अगर आप कुछ छुए हैं, मेटल की चीजें जो है, अलमीरा आपने छुआ है, तो उसको तो सैनिटाइज पूरी करनी पड़ेगी। पर सब्जियां हैं, कुछ आपका बाकी चीजें हैं, तो उसमें भी धोने से हो जाएगा। बाकी आप क्या छूते हैं? खाने की चीजें तो छूते हैं, या कुछ आपने कपड़े, अपना कपड़े ले लिया तो अपने कपड़े आप ही पहन लिया, उसके बाद उसको धो लेना। तो ज्यादा चिंता मत करिए। एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको बुखार हुआ, ये खांसी हो गया, पॉजिटिव आ गया, होम कंफाइनमेंट बताए तो घर पे रहिए। बाकी लोगों का टेस्ट तो जरूर होगा। अगर सब लोग पॉजिटिव ही आ गया तो घर एक कंफाइनमेंट बन जाएगी, और अपनी चीजें आप खुद वॉश कर लेना, और बाकी चीजें के बारे में चिंता छोड़ दीजिए। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चिंता छोड़ना बहुत जरूरी है, चिंता ज्यादा मत करिए। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा अमृत, और फेसबुक से भी लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल होता है, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि अगर हम ठीक भी हैं, अगर हमें कोई सिम्टम नहीं है, तो भी बचाव के लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक्स हैं इनकी संख्या बहुत बड़ी है। लगभग 60 से 70% लोग एसिम्प्टोमेटिक की श्रेणी में यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो एक तो मैं कहूँगा कि हम लोग मेडिसिन के लिए सप्लीमेंटेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी है, इसमें 500 mg/d 2 बार सुबह शाम दे सकते हैं। एक विटामिन डी है, D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली दे सकते हैं। जिंक 50 mg पर डे दे सकते हैं। तो ये कुछ सप्लीमेंटेशंस हैं। साथ ही साथ जो खाना है, खाने में मैं कहूँगा कि यदि थाली में 5 रंग हैं तो फिर उसमें सभी पूर्तियां हो जाती हैं। नेचुरल रंग के अगर 5 रंग हैं थाली में तो वो सारी पूर्तियां कर देता है।
तो ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो ये एसिम्प्टोमेटिक के लिए मैंने बताया, और साथ ही साथ कुछ जैसे अन्य दवाइयों को भी रखा गया है, हालांकि वो डॉक्टर्स के बताने पे ही इंडिविजुअल को लेनी है, जैसे आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन या एससीक्यू और एजिथ्रोमाइसिन, इन दवाइयों को भी हम लोगों ने इसमें रखा है, लेकिन इट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जी। All right. Well, Rama, I think that's all the time we have for. We'll have to thank our panel of doctors, Dr. M.V. Padma Srivastav from AIIMS, Dr. Ved Prakash from KGMU. Many thanks for being on the show and sharing your insights with us. I hope the questions of the callers were answered. We'll be back tomorrow, same time at 3:30 p.m. Do call in on our numbers that we're flashing on your television screens, and also you can go to our Facebook page, which is DD News Live, and pin your questions there, and a panel of experts every afternoon will answer your queries. Well, that's it from me and Rama. बिल्कुल, नमस्कार. Thank you. Namaskar. Indian vegetarian cuisine